Mahdi, please recite another loud salawat. Allahumma salli ala. Allahumma salli ala Muhammad. فاستعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. May Allah double up our rewards on account of our sorrow for the martyrdom of Imam Hussein alayhi salam, and may He include you and us with those who shall take revenge upon his killers with his blood claimer Imam Mahdi Ajjalallahu Ta'ala Sharif, who belongs to the household of Muhammad, peace be upon them. Please recite the salawat. Allahumma salli ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، كتابا يلقاه منشورا، كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك
نفسك اليوم عليك حسيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل ما شاء الله جزاك الله. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب علی اصغر کی ایک لوری، اس کے بعد آقا صاحب کو دعوت خطاب دیں گے. بر محمد و آل محمد صلوات. لوریاں والا بھرا جل گیا جھولا تینڈا شام ویندی پیاں سگر ویر وے ہن الوداع. لوریاں والا بھرا جل گیا جھولا تیرا شام ویندی پیاں سگر ویر وے ہن الوداع. دیواں لٹ دا حال کیا راس آئی نہیں کربلا شام ویندی پیاں سگر ویر وے ہن الوداع. جیڑی روے آتے رو کے آکھیا مسافر بہن اجڑی دا اخیری ہے سلام اصغر. میں قیدن بے وطن جہاں ٹری ویندی ہاں شام اصغر. تیڈی تریڈی دی تس میں کوں نہ بھل سی روز معاشر تائیں مکا چھوڑیا ہے ظالم نے میڈا سارا آرام اصغر. تیڈے جھولے دے کچھ ٹکڑے تیڈا
ਜੁਦਾਈ ਦੇ ਬਚਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਵਾ ਕੈਦੀ ਇਮਾਮ ਅਸਗਰ ਦੇਖ ਹੱਥ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਝੋਲੀ ਵੀ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਬੈਣ ਤੇ ਮਾਂ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਉਜੜੀ ਕੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦਸਾ ਕਿਵੇਂ ਜੀਸਾਂ ਤੈਂ ਸਿਵਾ ਸ਼ਾਮ ਵੈਂਦੀ ਪਈਆਂ ਸਿਗਰ ਵੀਰ ਵੇ ਹੁਣ ਅਲਵਿਦਾ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਇਹੋ ਏ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਜੁਰਮ ਕੁ ਦੇਖ ਸਜ਼ਾਏ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਬਲ ਦੇਵੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤੇ ਬਦਲਾਏ वो कीता कत्ल मासूम को त्रै वारी उंदी मां ते भेण गवाए पहले तीर मारा वल कबर पटीवो कीता खंजर दे नाल जुदाए क्या दसां बेशीर वे अपनी मैं तकदीर वे बहु मैं कूं बाबे दा कातल झिणकां देंदा वीर वे हे तंडी मकतल गवा कुछ भी साडा नहीं रिया शाम वैंदे पईयां सिगर वीर वे हुण अलविदा लोरियां वाला भिरा जल गया झूला तंडा शाम वैंदी पईयां सिगर वीर वे हुण अलविदा हाई कातल 36 सालां दा ते मकतूल फकत 6 मां दा जदां ज़ालम तीर को छिक दिती हाय वो हाथ जिगर ते आ गया मां दा बीबी आदि मेरी हसरत हाई वो ए बोलियां बोले ते है हमारे तीर जफादा तकू कबर दे विच भी माफ न करसा आया वैन असगर दी मादा तीर झल के समगिए दे के वखेरा गम गिए वीर मलकल मौत कुवी तू करा मातम गिए देख रोंदी रही कज़ा आखिरी तंडी अदा शाम वैंदी पईयां सिगर वीर वे हुण अलविदा लोरियां वाला भिरा जल गया झूला तंडा शाम वैंदी पईयां सिगर वीर वे हुण अलविदा फुल जिया तैंडा बदल है जो मोहताजे कफन वक्त होंदा बख्त होंदा करके वैंदी मैं दफन प्यो वांगू तू बेनवा मां वांगू मैं बेरदा शाम वैंदी पईयां सिगर वीर वे हुण अलविदा लोरियां वाला भिरा जल गया झूला तंडा शाम वैंदी पईयां सिगर वीर वे हुण अलविदा पर मोहम्मद वाली मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाली मोहम्मद नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदरी हुसैनियत यजीदियत
बावाज़ बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन, आपके सामने मैं दरख्वास्त करूँगा आगा हसन मुज्तबा रिज़वी साहब से कि वो मिंबर पे तशरीफ़ ले आएँ और मजलिस अदा से खिताब फरमाएँ। आपकी सेहत सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलवात। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. All praise and glory belongs to Allah, the one who is all seeing, all knowledgeable, who knows what is best for his servants, who provides what is best for his servants. This life of ours that we're living, there are certain needs that we have, and he has provided the resources for us to be able to fulfill those needs. As long as a person realizes that these needs are given to us, or these resources are given to us for a higher purpose, for a goal to be achieved, for a place to reach, then utilizing from these resources is exactly what has been intended by Allah subhanahu wa ta'ala. So when we look at the vision of Imam Hassan and Imam Ali has said that a person who they are is underneath their tongue. So when they speak, you will know that person. I mentioned to you the language is basically to be able to project what is inside, outside. So these poems that we went through in the last, this will be the 9th hour. And if you think about that, that's not a short amount of time. We should be able to know what is the place that Imam Hussein has inside of him for this world, for the resources of this world, for the things that we accumulate in this world, for the passing away of this world as a shadow. Okay? So when we look at those poems, we understand what Imam has inside, how he's looking at things. So we need to develop that sort of way of looking at things. So the purpose was not that you don't go to work, that you don't acquire the resources that are necessary, that you have need of to be able to live this life, that you don't study or you just leave people, that's not the goal.
The purpose is that you understand what is the exact value of the things that we have as resources to live this life. The value that Imam Hussain gives to those things, you and I should not put more or less value to those things. ये हो गया. मसलन इमाम की निगाह में पैसे की क्या वैल्यू. ठीक है, जो इमाम की निगाह में पैसे की वैल्यू है, उस वैल्यू से ना ज़्यादा हम पैसे की वैल्यू लगाएं ना उससे कम लगाएं. जितनी इमाम ने लगाई उतनी ही लगाएं. उनकी एक there is a poem in which he says that if all of wealth that you have accumulated is to be left, then what is the excuse of a person not to be generous? कि अगर सारी दौलत जो जमा की गई है उसको इधर ही रह जाना है तो फिर कोई वजह नहीं बनती कि इंसान सखी ना हो. रह तो इधर ही जानी है, साथ तो लेके नहीं जानी, तो क्यों ना इंसान सखी बने. ठीक है. Yeah, there's one poem in which he says that, you know, these people who take so much value of these things, he gives the parable or the example or tamsil of people who build their houses on sand. So you can't build houses on sand. If you build a house on sand, it's going to fall. The way he looks at death, he wasn't afraid of death. He remembered death and he was motivated by it. So since today is sort of like with the last day, then tomorrow is more remembering the hardships and the martyrdom of Imam Hussain. You know, you already have now, most of you know, and if you don't know, then where to find this. The management, I can give them the link. I mean, you can read this book, you can go through the poems, and if you happen to find, you know, difficulty in some aspect of your life, then these poems are kind of chronologically, or they're ordered in a content. Like they have specific titles. You can look at the title and then read that particular poem. The other way we can do is let's say if we understand the vision of Imam Hussain, then the question is, what if Imam Hussain was alive today? What would he say to us? यानी इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अगर अभी हमारे दरमियान में होते तो हमसे क्या कहते. अगर हमने अपने दिलों को दुनिया से जोड़ा हुआ है तो हमारे लिए वो कौन से शेर कहते. अगर हम मौत से डरते हैं तो हमारे लिए क्या कहते. हमें किस तरह से अमर बिल मारूफ करते और नहीं अनिल मुनकर करते. अगर इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अभी हमारे दरमियान में होते तो क्या कहते. अगर आपके पास और मेरे पास उनकी जहानबीनी आ गई है तो हम उस जहानबीनी के मुताबिक समझ सकते हैं कि इमाम हुसैन हमें क्या कहते. ठीक है, हम कहते हैं कि अगर हम उस वक़्त होते तो हम आपके साथ मिलके उस जगह पे पहुंच जाते जो कि एक बुलंद मुकाम है. So if you understand the vision or the world view of Imam Hussain, you can understand what he would say to you. Yes, we were not present 1400 years ago in front of him, right? But we say that if we wish we were, and then we would have gotten that status that the martyrs of Karbala got, right? But even though we're not there, but if we know the worldview of Imam Hussain and we understand what he wants, what he has inside, and what he has projected outside in his sayings, in his actions, in his history, then we don't have an excuse that, oh, we were not there. क्योंकि ये हुज्जत हमारे लिए पूरी हो चुकी है. इमाम हुसैन के लिए जो तारीफ़ है इस दुनिया की, जो तारीफ़ है दौलत की, जो तारीफ़ है माल की, जो तारीफ़ है
ख़ानदान की, जो तारीफ़ खुदा की इबादत की, जो तारीफ़ खुदा के साथ लौ लगाने के लिए, जो इस दुनिया फ़ानी को समझने की, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास हैं। हमें आके इमाम हुसैन साहब सामने कोई और नई चीज़ नहीं बतानी। उन्होंने यही हमसे कहना है, अगर रुब्बे दुनिया कहेंगे निकालो, अगर मौत से डरते हो कहेंगे ना डरो। If we have attachments to the world, he's going to tell us that detach yourself. If we are afraid of death, he's going to be, don't be afraid of death. If we think that, we're not going to die, he's going to say, well, think of yourself that one day is a life. This is exactly what he would say. So we have like no excuse. हमारे पास ये नहीं हम कहेंगे कि जी हम वहां पे नहीं थे तो अब हमारा क्या कसूर, नहीं. On top of that, 50, 40, 60, whatever odd years we have, even the brothers who are 10, 15 years old, you've been coming to these majlises. You've spent hours. Hours. Is it 2 months, 8 days, right? If you think, so it's 2 months, 8 days is what, 30, 30, 60, 68 days roughly. 68 roughly, the people who were like, back home, they would attend at least one majlis a day, right? And some people would attend 3 to 4 majlises a day, right? So if you look at 1 year's worth of hours invested on the first shaza in front of someone, in a year is how many? 68 hours, let's say, for example, right? In 1 year, 68 hours, and you multiply that now by 10. How much is that? 6,000? No, 600? Huh? 680. If you keep on going, right, what you will come up with the number is that it will become as if you had done 3 to 4 PhDs. People who have the age of 50, 60, the amount of years they have spent, like a semester would have certain amount of hours. It's 4 years bachelor's, 2 more years, let's say, or 3 years. I'm not sure about how it works out. But if you look at the number of hours, a person who has reached the age of 50 or 60, the amount of hours they have spent on the first shaza would equal to perhaps 3 to 4 doctorates, PhDs. So if someone has invested that much time and that much knowledge has been imparted on them, or they had the opportunity to listen, 3 or 4 PhDs, and then they act as if they don't know anything, ये मेक सेंस नहीं बनती ना. मसलन आपने इतने हजारों घंटे लगाए जिसमें आप 3 से 4 डॉक्टरेट कर सकते थे, और फिर उसके बाद इंसान अमल ऐसे करे जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं. ये कहाँ से सही बात बनती है? मैं चाहूँगा कि हमारे जो बुजुर्ग हैं या जो बुजुर्गी की हालत में हैं या अपने आप को बुजुर्ग समझते हैं, वो थोड़ा सोचें. ये जो इतने घंटे हमने लगाए हैं, जो हमने सेक्युलर सिस्टम के अंदर लगाए, तो सेक्युलर सिस्टम ने हमें कितनी डिग्रीज दी, क्या कुछ किया, और इस फर्श अज़ा से हमने जो सीखा वो किधर है? अगर नहीं है वो, अब कितने और हुसैन आए हमें बताएं, कितने हम और हुसैन चाहते हैं? How many more Hussein like Imam Hussein Sallallahu Alaihi Wasallam have to come to admonish us, to advise us, to guide us? And how many more of these Husseins need to be martyred and have their heads severed and put on a spear for us to wake up? किस जगह पे हम खड़े हैं? इमाम हुसैन उन लोगों से कह रहे थे कि अगर तुम अपनी
दीन में आज़ाद नहीं हो सकते तो कम से कम अपनी दुनिया में आज़ाद हो जाओ। दुनियावी लिहाज से भी अगर ये सारे जो हमने घंटे लगाए हैं उससे अगर आप किसी को जाके बताएं वो कहेगा ये क्या बात, मसला क्या है। इतने घंटे अगर तुमने इतना नॉलेज सीखा होता, तुम्हें ये मिला होता, तुम्हें ये पता होता, ये कहां से सही है। When you look at the way Imam Hussain Sassam spoke to these individuals, we think that we are not those individuals. We think we're not that. In reality, we are. In reality, we are the same people that were in front of Imam Hussain Sassam. Exact ditto copy. हमारे नाम है मुकद्दस, हमारे काम और किरदार तकद्दुस के। हमारे नाम है हसन और हुसैन, अली और फातिमा और जैनब, लेकिन किरदार हसन हुसैन जैनब के नहीं है, सिर्फ नाम है। और क्योंकि नाम है हम समझते हैं हम भी मुकद्दस हैं, क्योंकि नाम है, तकद्दुस वाले नाम दिए गए थे कि इनकी तरफ तवज्जो करके बार बार हसन 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 सुनेगा तो किसी दिन हसना उसमें आ जाएगा। That they will keep listening to these names, and then maybe one day something of that meaning of this name will come inside. The Holy Prophet has said that my nation is going to be a ditto copy of Bani Israel. रसूल ने कहा है कि मेरी जो उम्मत है वो 100% फोटोकॉपी होगी किसकी? बनी इसराइल की। Then he said that even if the most impossible thing that Bani Israel could do, which is like, let's say, completely impossible, to have a camel to be put through the eye of a needle, even if it's that impossible, my nation would do the same thing. Who were Bani Israel? Bani Israel were those people who would martyr prophets, come and open their shops. They would make fun of the prophets. Many verses. They would make fun of the prophets. One thing is not to obey them. One thing is to say that what you're saying is not right. But on top, they used to make fun of the prophets. They would say, oh, bring some, like these people, among the prophets, when he was doing his preaching, they would say, bring another Quran. This one we don't want. Bring something else. But what you're saying has no value. We don't care. Bring something else. Let's see. So now, if the Prophet has said that this is what my nation is going to become, we are from his nation. If we are from his nation, then basically what it means is that we are going to become the photocopy of Bani Israel. इमाम की एक पोएम है जिसमें कि इमाम ने अपने हालात बताए हैं कि भाई उनके सामने क्या हालात थे। आज क्योंकि आखिरी चंद मिनट हैं आपके साथ, तो मैं उसको अगर करने लगूंगा तो फिर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा निकल जाएगा। मैं आपसे कहूँगा कि आप जाके देखें उसको, और देखने के बाद ये अपने आप से सवाल करें कि आया हमारे भी वही वक्त है या नहीं है। Imam Zaman and Imam Hussain, I've told you, connected with each other. No separation. Okay. Companions, ditto copy. Imam Hussein's companions, ditto copy. Imam Zaman's companions. Guess what? The enemies too. The time as well is going to be the time of Imam Hussain. जब इमाम आएंगे तो वो वैसे ही वक्त होगा जैसा कि वक्त इमाम हुसैन के वक्त में था।
उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मसलन चलो अब ये पोएम का नहीं, क्योंकि मैंने कहा पोएम नहीं उसमें जाएंगे तो 1 year before the event of Karbala, Imam had given a khutbah sermon to the people, and he was addressing the individuals that were also in a place of leadership, and also the people who were following the leadership. He said to them that what has happened to you? He said, what has happened to you when the traditions of your forefathers are not fulfilled, you get angry. But in front of you, the laws of Allah subhanahu wa ta'ala are being trampled, but nothing happens to you. इमाम कहते हैं कि क्या हो गया तुम्हें कि जब तुम्हारे आबा अजदाद के रसूमात जो हैं वो नहीं मनाई जाती या उनको जो है वो नहीं किया जाता तो तुम्हें गुस्सा आ जाता, लेकिन तुम्हारी आंखों के सामने खुदा के कवानीन को पामाल किया जा रहा है, तुम्हें वो देख के गुस्सा नहीं आता। अब आप बताएं ऐसा है या नहीं है? यानी हमारे अबावजात की कोई रस्म ना मनाई जाए हमें गुस्सा आएगा। गुस्सा कितना आएगा? लड़ेंगे हम, लेकिन हमारे सामने खुदा के कवानीन पामाल हो रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उन लोगों से खिताब करते हैं कि जो जिनके से दीन लोगों ने चाहते हैं। He says to them, he says, people treat you like prince. People treat you like kings and princes. Right? Why? Because they want the religion of Allah subhanahu wa ta'ala. Why don't you give them the religion of Allah subhanahu wa ta'ala? हम कहते हैं ये लोग, क्योंकि खवास भी थे, ये लोग तुमसे दीन चाहते हैं और तुम्हें शहजादों की तरह रखते हैं। क्यों तुम्हें शहजादों की तरह रखते हैं? ताकि तुम उनको खुदा का दीन दो। तो तुम उनको खुदा का दीन क्यों नहीं देते? आज आप देखें जो एक मौलवी की जो प्रोटोकॉल होता है, 15-15, 16-16 मसलन वो पिजेरोज होंगी, जो कुछ भी होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां, सारा कौन आ रहा है? कोई बादशाह आ रहा है, कोई शहजादा आ रहा है या नहीं? ऐसे लगता है ना उसको देख के कैरवान को, जैसे कोई बादशाह आ रहा हो, पता नहीं किस स्टेट का बादशाह आ रहा है या नहीं? या मुझे आप ऐसे देख रहे नहीं है? एक तो वो लोग जो ये प्रोटोकॉल देते हैं और वो बंदा जो एक्सेप्ट करता है। इतना, after all of this, they treat him like a prince, like a king, and then afterwards what are they expecting? God's religion. Imam saying to those people, why don't you give them then the God's religion? Why don't you do it? मिंबर पे बैठ के बच्चे को के ऊपर वो उसको टोक देंगे कि उसने शायरी के अंदर एक जो है लफ्ज से इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उस मिंबर पे बैठ के जिस जाबिर हुकूमत के सामने उनको कुछ कहना था, जाबिर हाकिम को टोकना था, उस वक्त उसको नहीं टोकेंगे। मिंबर पे अपनी शोहरत की खातिर पॉलिटिक्स के अंदर लंबी लंबी तकरीरें कर देंगे। अपने बारे में अगर कोई कुछ उनको कह दे, वो मिंबर से दिफा कर रहे होंगे अपना, ठीक है, लेकिन वो जहां पे अमर बिल मारूफ नही मुनकर करना है वहां पे चुप। ये कहेंगे कि भाई और कोई पेशा नहीं रहा सवाए इमाम हुसैन के खून को बेचने का, और खुद वही पेशा कर रहे हैं। हमें बताएं ये कौन सी हालत है, किस तरह की हालत है? और हम सब खामोश चुप। बल्कि we give them the opportunities, we get them to their high status. Imam Ali alayhi one time he was going from a city and people start running after his horse. Say, what are you guys doing? Imam, अब मसला मेरा इंग्लिश और उर्दू का है, लेकिन I'm assuming कि we are here, so I shouldn't have to translate exactly the same thing. They're running, and Imam's like, what are you doing? They go, this is our custom to show respect by running after the horse.
Imam's like, what kind of custom is this? First of all, you're getting tired for no reason. And what is the honor if you're running after that person's horse? Where's the honor in that? Where is the respect in that? Eh? तो आप देखो लोग भाग रहे होंगे सवारियों के पीछे, क्या कि जी हम तकद्दुस शो करें, एहतराम शो करें, वही रस्म क्या है वो, उसमें किसका कौन बड़ा बन रहा है? अबे आप अगर हम इसी तरह की जो, if we were to keep looking at our time and Imam Hussein's time, it's exactly the same. The only thing is Imam Hussein is awesome. Now Allah subhanahu wa ta'ala is now going to bring the Hussein of the time so that we can become responsible again for him to have his head severed and be brought on a spear. That's not going to happen. Until and unless we change ourselves. अब ये नहीं होगा, एक और करबला बर्पा नहीं होगा, अब रसूल की बेटियों के चेहरों पे तमाचे नहीं लगेंगे, अब हम रोते रहेंगे, कहते रहेंगे, जुल्म हम पे होता रहेगा, मुस्तज़फ़ हमें बनाया जाएगा, जलील हमें किया जाएगा, जिल्लत की जिंदगी जीते रहेंगे। उस वक्त तक हुसैन वक्त नहीं आएगा जब तक हम नहीं बदलते, क्योंकि दोबारा ये करबला नहीं होगा। Not again. Once in the history of human beings is enough. It will not happen again. Why do you think for the last 1200 years, 1200 years, 1200 saal almost, for 1200 years we are orphans. हम यतीम हैं, हमें यतीमी का एहसास नहीं हो रहा, हम हकीकत में यतीम हैं, सरगर्दा हैं, परेशान हैं, हैरान हैं, समझ नहीं लगती, इधर जाएं उधर जाएं, किसी को देखते हैं हो सकता है कि कुछ हमें मिल जाए, जाके देखते हैं तो अंदर कीड़ा लगा हुआ है। The state that we're in, we don't know which way, should we go this way, should we go that way? And all of this, even there are traditions from the 12th Imam that this is what's going to happen. We're orphans. No check and balance, no matter what somebody wants to do, they come and do it. We want to be guided. We want to be guided, but we don't want to be guided. We want to do good deeds, but we don't want to do good deeds. 1200 years have passed. Can you imagine living in the time of Imam Hussain and not being able to see the Imam? How difficult that would be. आप इमाम हुसैन के वक्त में रहते होते और आप यानी आप ही के साथ होते, वो आप ही की जगह पे होते, लेकिन आप देख भी ना सकते उनको, सुन भी ना सकते, पास भी ना बैठ सकते, किसी को तकलीफ ना होती। हम तरसते रहते कि हमें कोई शख्स ऐसा मिले कि हमें उनकी याद आए। हम तरसते हैं। हमें ना होता, हमें फिक्र ना होती कोई हमें कि भाई ये क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। This is the state that we're in. So many examples I can give you. People at that time used to choose something in religion they would accept and something they won't accept. किसी चीज को ले लेते थे, बाकी जो उसको नहीं थी पसंद उसको छोड़ देते थे। आज हमारा भी ये हाल है, हमें जो पसंद आता है हम ले लेते हैं दीन में, जो नहीं पसंद आता है कहते हैं कि नहीं लेना। मसलन किसी को इतनी शहादतें पढ़नी है, वो कहता है ये बस सारा दीन है, ये मैं ले लूंगा, बाकी मैं नहीं लूंगा। किसी को जो है वो some people want to just get fatwas
for their own desires, their own whims, their own way of life, and just take out write down an email and then get their answer. Whatever way that we feel we want to turn religion into, we're turning it. जिस तरह से हम दीन को चाहते हैं मोड़ लेते हैं. यानी दीन से हम ये नहीं कहते कि तुम मुझे सिखाओ, हम दीन से क्या कहते हैं? मैं तुम्हें सिखाऊंगा. When it comes to understanding Quran, we already have our pre-assumed, and I would use the word assumed, pre-assumed ideas, and we want the verses of the Quran to fit into that pre-assumed idea. We're not getting the idea, we're not getting the meaning, we're not getting the content from Quran. We already have an idea, we just want the ayat, the verse to fit into that idea. And तोड़ मोड़ के जैसा भी है वो हम फिट कर देते. इमाम अली आखिर ज़मान के बारे में बात करते हैं, कहते हैं कि उस वक़्त कुरान का ये हाल होगा कि अगर कुरान का हक अदा करें ना तो कुरान कितना सस्ता बिकेगा, कितनी उसकी वैल्यू होगी. कहते हैं कि जो माल ख़राब हो जाता है ना, और जो दुकानदार है वो जब उसको बस क्लियर कर रहा होता है कि बस कोई भी आके ले जाए. वो कहते हैं जब कुरान का हक अदा नहीं किया जाएगा, कुरान को खुद इस्तेमाल किया जाएगा, उस वक्त कुरान की कीमत इतनी होगी कि बेहिसाब. और ये आप देख सकते हैं, अगर कुरान के हक को अदा किया जाए उस चीज़ की कोई कीमत नहीं है, कोई नहीं लेता. और अगर उसको हक अदा ना किया जाए, उसको तोड़ा मोड़ा जाए, तो वो शख्स जो ज़्यादा आयतें कुरान की पढ़ता है उसको फिर ज़्यादा पता नहीं आप उस जगह पे पहुंचे, यानी कि एक्चुअली हम रहे उसी वक्त में रहे. यजीद जैसे हुक्मरान है हमारे, जो किरदार यजीद का था वही हमारे हुक्मरानों का है. इमाम हुसैन कहते हैं कि भाई अगर कोई शख्स ऐसे हुक्मरान को देखे जो खुदा के हलाल को हराम कर रहा है, जो वादा शिकनी करता है, जो लोगों के मजलूमों को जो है वो मार रहा है, उनके लिए कुछ नहीं, यानी उनका कोई ख्याल नहीं रखता, इस तरह के अगर जालिम और जाबिर हुक्मरान को कोई देखे, और चंद सिफात बयान की, उसके बाद कहते हैं कि अगर वो उसके सामने चुप रहे, कुछ ना कहे, तो रोज़े माशरे में उसी हुक्मरान के साथ उठाया जाएगा. हमें किसके साथ उठना है? हमें किसके साथ उठना है? हम कहते हैं हमें इमाम हुसैन के साथ उठा. We say it in Ziyarat Ashura as well. So how are we going to be resurrected on the day of judgment with Imam Hussain if we don't fit the criteria that Imam would like us to be resurrected with him? Because we perhaps, whoever that you have inside, that you love, that you follow and so forth, on the day of judgment you'll have a connection. Otherwise just the saying doesn't make it. Those people had arrogance. We have arrogance. They use religion for politics. We use religion for politics. मतलब अब एक शख्स है, उसको प्रेसिडेंट की फॉर एग्जांपल पोजीशन दे दी गई है, ये प्रेसिडेंट का लफ्ज़ उसके सर पे चढ़ गया, इस्तीफ़ा हाथ में लिए फिर रहा है. जब होता है मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, ऐसा है तो आके ले लो फिर, और अपने आप को समझ जैसे वो किसी स्टेट का प्रेसिडेंट बन गया है. आप गिनते रहें, देखते रहें. एक तो मसला हमारा ये है कि कोई इनको कहता भी नहीं है कि भाई ये हमारी हालत है. यानी बिल्कुल ना, एक जैसे हमने खुश्क तकद्दुस का लिबादा चढ़ाया हुआ है. खुश तकद्दुस लिबादा, मसलन हम बाहर से हमने लिबादा चढ़ाया हुआ है कि हम मुक़द्दस है, या हमारे पास कोई तकद्दुस है, या हमारे पास दीन है. अंदर से देखें तो हमने लिबास, वही लिबास उल्टा पहना हुआ है. In the time of Imam Ali, he says that what the Muslims have done, they've taken, like if there is some water in a pot, they've taken this pot and put it down like this.
And because they've put it down like this, whatever now the wetness is remaining on the bottom is what is remaining now of Islam. मुसलमानों ने कहते हैं कि उनके ज़माने में कि बर्तन को ऐसे लिया, इस तरह से गिरा दिए. अब ऐसे जो गिरा दिए पानी को, जो तरी बच गई है उसके बेस पे, कहते बस इतना ही इस्लाम बचा है. इमाम अली के पास अगर उस ज़माने में इतना बचा था, तो आप मुझे बताओ ना कि आज 1400 साल के बाद उस बर्तन में क्या बचा है. अब देखो, अगर हम ये बात मान जाते हैं कि भाई ठीक है, हमारे अंदर वो किरदार है, if we accept the fact that we have those things, ठीक है, we can do something about it. We know from somewhere in the bottom of our heart that we have a fire inside of the love of Imam Hassan. We know that. मुझे किसी के उसमें शक व शुबा नहीं कि आपके अंदर वो पोटेंशियल, वो आग जल रही है. हदीस के अल्फाज ये हैं कि इमाम हुसैन की मोहब्बत वो हरारत है, वो आग है जो कि इंसान के दिल से सारे गुनाहों को जला देती है. देखिए, we have this love. It just needs to come out. It needs to come out not just in tears, in our lives. It's been coming out in the form of tears for the last 600 years. 600 years. 1200 साल इमाम की ग़ैबत कुबरा है, उसमें से 600 साल अज़ादारी बाहर आई हुई है. हमें रोने का मौका दिया गया है. हम मातम कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, मजालिस कर सकते हैं. 600 साल से दिया हुआ है. पहले अज़ादारी जो है बादशाहों की हो गई, फिर उस अज़ादारी को उलमा ने किया, फिर उस अज़ादारी को छोड़ के जाकिरों ने किया, और अब उसी अज़ादारी को जो जाकिर कर रहे थे, अब वही मौलवी कर रहे हैं, लेकिन कर वही रहे हैं जो जाकिर कर रहे थे. ये तारीख है 600 साल की. पहले जब वो बादशाह ने निकाली, उसने वही अपनी जैसे शान और शौकत होती, उसने उस शान से की. इमाम हुसैन की शान को नहीं देखा, उसने अपनी शान देखी और कहा अज़ा ऐसी होनी चाहिए. उधर से जब उलमा ने कहा कि चलें हम इस अज़ा के अंदर कुछ करते हैं, we will do something about this अज़ा, when they got in front of people, they saw that these people, they don't know ABCs, they're in kindergarten. We are scholars of universities. Yani, for example, if you get a professor of university and you bring him like kids in front of you, what do you think he would do? He would say, no, I have my own status, I'm not going to teach these kids. उन्होंने कहा कि हम मदरसों में ठीक हैं, हम मिंबर पे नहीं बैठेंगे, हम मदरसों में ठीक है. मदरसे पढ़ाते रहे, मिंबर की जगह खाली हुई तो किसी ने जगह ऊपर की. वो लोग जिनका पेशा जो था वो ऐसा था कि एक शरीफ घराने के अंदर अगर कोई वो पेशा करता तो कहता था कि ये इसने हमारे घराने की इज्जत खराब कर. There were singers, entertainers, marasi, for example. They were just, उनके पास एक फन होता था, वो करते थे. They saw the space is empty, they came and sat on it. फिर उन्हीं धुनों में, उसी आवाज में, उसी फन को अज़ा मिल जाएगी. उसके बाद उनको इज्जत मिलने लगी. They got like respect, and these people had no respect in society. They start getting respect. They would not be able to eat properly. People are feeding them. You sit down now today with the Molana, you'll get the best food. They started feeding them. They're like, well, what more? They're getting honor, they're getting respect, they're also getting money, and they're using their talent as an entertainer. What better? इससे अच्छा और पेशा क्या हो सकता है? Then the scholars, and when I say scholars, the true scholars are not included in this. The ones actually who understand the religion and they're on the righteous and pious path, we're not talking about them. They saw that these entertainers are taking the stage.
And this I hate the most when we call this a stage. मुझे जितना अंदर से गुस्सा आता है ना जब कोई कहता है कि ये स्टेज है. स्टेज पे फिर परफॉर्मर्स आते हैं ना, स्टेज पे रसूल का वारिस नहीं आता. अंबिया कि अगर वरसा हैं उलमा तो नबी का वारिस स्टेज पे नहीं आता. परफॉर्मेंस आते, सामरी आते. So on the stage they said, okay, these guys are, getting all of the fame, they're getting all the money, and they are, they don't even have any knowledge. All they have is just entertainment skills. Let's turn our knowledge into that. फिर those type of scholars, उस तरह के मौलवियों ने आके ये स्टेज पकड़ लिया. लिबादा आलिम का है, जबान जाकिर की. लिबादा आलिम का, जबान जाकिर की, और किरदार इमाम हुसैन के दुश्मनों का. निफाक, लालच, किब्र, हसद, हुब्बे दुनिया, ये किरदार. And right now we're in that stage. And what's going to happen next? Like, okay, we're in the West, we need some English speakers. And then there is a history of that too. Somebody whose looks were such that, our sisters will look at those looks and want to come and see. They became popular. Just like idols, just like stars. Start having followers. And then there's decided, okay, as a celebrity, I'm going to charge this much. I said, okay. आप ये इंग्लिश स्पीकर क्यों बुला रहे? हम अपने बच्चों के लिए बुला रहे हैं ना. अगर बच्चों के लिए बुला रहे हैं, ये शख्स जो उनको दीन दे रहा है, उसके बाद 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, अब जो बच्चों का हाल है, वो कहते हैं तुम कौन हो? हम 18 के हो गए, जो करेंगे. So then they became famous, they became celebrity, they started having, just they filled in that space that the youths were looking for. When you live in the West, you follow a celebrity, you follow an icon, you follow an idol. You wear your clothes that way, you bring your tattoos that way, you speak that way, you buy those brands that way. And then all that, to this point where the Azaa of Imam Hussain, recitation of Quran became a game show. Entertainment. And this has happened all in front of our eyes. इस सब हमारी आंखों के सामने हुआ. हमने क्या किया? What did we do? क्या किया हमने? अब अगर इमाम वक्त आ जाए, उनके साथ हम क्या करेंगे? अगर इस तरह की हमारी हालत है, जो कि है, मान लें ये है. अगर हम कहते हैं कि नहीं है, तो फिर मुझे बताएं 1200 साल से ग़ैबत कुबरा क्यों चल रही? क्यों है? ये दलील है इस बात की. नहीं, हम तो इमाम के लिए अपने बच्चों को कुर्बान करेंगे. बंदा जो है वो इमाम हुसैन के घर में एक वक्त दिया गया, उस वक्त पे नहीं आ सकता. वो कहता है मैं बच्चा कुर्बान करूं. उसे कहते हैं जूतियां सही तरह से रखो शेल्फ में, वो नहीं रख सकता. कहता है मैं बच्चा कुर्बान करूं. यानी कहां से कुर्बानी कहां से देंगे? किधर से दे देंगे? कौन सा जज्बा हमारे पास? पता भी है कि बच्चे को कुर्बान करना कितना मुश्किल है, अंदाजा भी है.
एक छोटी सी चोट लगती है किसी बच्चे को तो माँ का दिल कैसे क्या होता है उसका। उस माँ को अगर खुदा के साथ इश्क उस तरह से नहीं होता जैसे असगर की माँ को था, कभी अपने बच्चे को कुर्बान नहीं कर सकता। उस माँ को अगर खुदा से प्यार उस तरह से जैसे कासिम की माँ को था, नहीं कर सकती। ये खुदा का प्यार था जो मां की ममता को उसने बदला। किसमें? कुर्बानी का जज्बा डाल के कि मां की ममता कहे कि ये खुदा के इश्क में मैं इसको कुर्बान करूंगी, बचाऊंगी नहीं कुर्बान करूंगी। मां की ममता क्या कहती है? मैं बचाऊंगी। खुदा की इश्क में जब ममता आती है तो कहती है कि मैं इस बच्चे को कुर्बान करूंगी। हमारे पास ये मिसालें हैं, हमने इनको सुने, हम इनको सुन के बड़े हुए। कहां है वो कुर्बानी का जज्बा? Hazrat Ali Asghar, 6 months baby. If you ever have seen a 6 months baby, the skin is soft as flowers. You touch a rose and you touch the skin of a 6 months baby. The bones are not formed yet. All it is just liquids. And then you keep that baby of 6 months thirsty for 3 days. What will happen to this flower? There has nothing but water. It's nothing but water. And you don't give it water for 3 days in the sun, and the sun of that place. What condition would this baby be? It says that Hazrat Ali Asghar's eyes had gone inside. I don't think you have seen when someone gets dehydrated, what happens to them. The lips they were dried so much that they were bleeding because of no water in his body. His body was heating up from inside. His tongue had blisters. He had like no energy to cry. He wanted to tell his mother, I'm thirsty. चाहते थे माँ को बताया मुझे प्यास लगी है, लेकिन रोने की हिम्मत भी नहीं थी। रो भी नहीं सकते थे कि रो के बता दें। रोने के लिए भी तो पानी चाहिए, आंसू चाहिए। आवाज भी नहीं निकलती थी। Imam Hussain, on the day when he felt the most lonely, Vitral Mautur, he stood in the battlefield. Imam खड़े हुए करबला के मैदान में, इधर उधर देखते हैं, जहां पे भी देखते हैं लाशें पड़े, अकेले रह गए ना, बिल्कुल अकेले। कभी हजरत अब्बास, अब हबीब, ये सब यादें आ रही हैं, किधर है वो? इन सब के बाद कहते हैं कि बस कोई है जो मेरी मदद करे। आप बताएं ना, इमाम हुसैन की ये जो इस्तिगासा है, ये अभी भी आवाज आएगी उसको जो हुसैनी होगा, उसको भी अभी इमाम हुसैन की आवाज आएगी कि हल में नासिरिन, कोई है मेरा मददगार, कोई आज के जमाने में उठ सकता है मेरा मददगार, मेरी मदद करे, हमें मदद की जरूरत है। उस वक्त इमाम की आवाज, इस इस्तिगासे की आवाज को हज़रत अली असगर ने सुन के उनके अंदर इतनी ताकत पैदा हो गई, उन्होंने अपने आप को झूले से गिरा दिया।
जब इमाम कहते थे झूले से अपने आप को गिरा देते थे। इमाम आए, खेमे में आए, असगर की माँ कहती है कि मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है असगर को, आप जैसे सखासा की सजा देते हैं ये अपने आप को झूले से गिरा देता है। मैं हैरान हूं कि इसके अंदर ताकत कहां से है। इमाम हुसैन साहब हजरत अली असगर को उठाते, आयदा कहते हैं कि हमने देखा कि हुसैन आ रहा है, हमें लगा जैसे कि उसके हाथों में कुरान है, कि अब कुरान को अपने दरमियान और हमारे दरमियान में रखना चाहता है। जब हमने थोड़ा सा और देखा तो हमें एक 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 बच्चा, जैसे छोटे बाजू होते ना, वो लटके हुए थे। इमाम हुसैन के बाजुओं के बाद कुछ छोटे छोटे बाजू लटके हुए थे। हमने एक छोटे से बच्चे को देखा जिसके जिस्म में हरकत नहीं थी, उसको हुसैन ने करबला की रेत पे रख दिया, गरम रेत पे रख दिया बच्चे को, और कहने लगा कि तुम मेरे खून के प्यासे हो ना, तुम मुझे ये बताओ इस 6 माह के बच्चे ने क्या किया है, तुम मुझे नहीं पानी देते, इसको दे दो। हजरत अली असगर ने अपनी अपनी जबान दिखाई। दुश्मन, खुदा का दुश्मन कहता है कि हुसैन की जबान को काट दो। हजरत अली असगर का हाल देख के खुदा के दुश्मन, जिनके के दिल इतने सख्त हो चुके थे, उनके दिल नरम होने लगे। वो एक दूसरे से सवाल पूछने लगे कि हम कर क्या रहे। हजरत अली असगर की इस अदा ने उन दुश्मनों के, उन खुदा के दुश्मनों के दिलों को नरम किया दिया। खुदा के दुश्मन ने देखा ये तो औज़ार बदलने लगे हैं, तो हुसैन जीतने लगा है। कहा कि हुसैन की जबान को किस तरह से करें, हुसैन तो दूर है, बच्चा भी उसने उठा लिया, 6 माह का बच्चा है, किस तरह से हुसैन की जबान को काटेंगे। हुरमला को बुलाया गया, उसे कहा गया कि हुसैन की जबान को काटते। हुरमला ने अपना तीर लिया, कमान में डाला। अब ये जो तीर कमान में डाला गया है ना, ये ऊंट की गर्दन के लिए बना था। ये कमान में डालता है, तीर को खींचता है, जैसे तीर को खींचता है रुक जाता है, फिर खींचता है रुक जाता है। क्या हो गया, तुम्हें क्या निशाना छोटा है, क्या तुम्हारे लिए निशाना छोटा है, तुम तो एक बहुत अच्छे तीर। कहता नहीं, मैं जैसे तीर को खींचता हूं कमान में तो ये खेमे जो है ना, वो खेमों के जो पर्दा है ना वो हिलता है। मुझे ऐसे लगता है कि इस 6 माह के बच्चे की जो माँ है ना वो देख रही है, और ये सोच जो है ना मुझे तीर नहीं चलाने देती। ठीक है, आंखों पे पट्टी डाल के उसने निशाना बना चुका था, उसने तीर को छोड़ा। ये जो तीर आके इमाम के जिस्म मुतहर पर लगा, लेकिन रास्ते में जो इसने काटा है ना, उस तीर को महसूस भी नहीं हुआ कि मैंने क्या काटा है। जिस चीज को वो काट के आके लगा ना इमाम हुसैन के जिस्म मुतहर पे, उसको, उस तीर को पता भी नहीं लगा मैं क्या काट आया हूं। इमाम हुसैन जो हैं वो भी हैरान होते हैं कि ये क्या हो गया, तीर मुझे लगा है। असगर मेरे हाथों में जैसे मछली को पानी से निकाल दें, ये तड़प क्यों रहा है, जिसमें ताकत नहीं थी रोने की, ये तड़प क्यों रहा है। इमाम जब उस तरफ निगाह करते हैं, देखते हैं कि हाथ कुछ गर्म हो रहे हैं, हाथों में गर्मी आ रही है। अब जो मंजर इमाम हुसैन साहब सामने देखा, एक फूल
जिसको तीर ने जख्मी किया, खून जमा हो रहा है, क्या करें। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को जो सलाम है, इमाम ने भेजा ना कि आप पे सलाम हो उस रीश पर, उस दाढ़ी पर कि जो सुर्ख हो गई। मंजर कशी नहीं हो सकती, इसकी जहन में नहीं आ सकती ये तस्वीर कि बाप किस तरह से खिजाब लगाता है अपनी रीश को। ये खिजाब किस चीज का है कि जो उसने उसकी रीश को लाल कर दी। अब इसको लेके जाना है माँ के पास। यहाँ पे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, कभी आगे रिज़म बे कज़ाई व तस्लीमन ले अम्रे, आगे पीछे आगे पीछे, क्या करे। माँ इंतजार कर रही है, माँ इंतजार कर रही है, बच्चे को वापस लेके जाना है। असगर की माँ ने क्या देखा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हाथों में खून, ये माँ का बच्चा, अब क्या करे, अब क्या। सकीना पूछेगी क्या हुआ मेरा भाई किधर है। जब पानी मिला ना शाम गरीबा में, बीबी सकीना को वो बर्तन ले लेके फिर रही थी, कहती मेरा असगर किधर है, मैं उसको पानी देना चाहती हूँ। क्यों मेरी बीबी, आप क्यों इस कूजे को लेके असगर को ढूंढ रही हैं कि आपको पता नहीं लगा ना कि हुआ क्या। आपको पता नहीं लगा हुआ क्या, क्योंकि हुआ ये था कि असर की माँ ने और बाप ने उस जनाजे को, जो कि इंसानियत की तारीख में सबसे मजलूम तरीन जनाजा था, उसको एक जगह पे छुप के एक छोटी सी कब्र खोदी थी और उसमें उस चेमा के बच्चे को डाला था। खुदाया, आज की रात इबादत की रात है, आज की रात इस्तगफार की रात है, आज की रात जागने की रात है, आज की रात अपना तज्जिया करने की रात है, आज की रात गुनाहों की माफ़ी मांगने वाली रात है, आज की रात अपने किरदार को बदलने का आज़म करने की रात है, आज की रात उन लोगों की रात है कि जो खुदा के इश्क में डूबे हुए थे। आज की रात उन माओं की रात है कि जो अपने बच्चों को समझा रही थी कि अगले दिन हुसैन के लिए तुम्हें कुर्बान होना है। आज की रात, अगर आज की रात हम नहीं उन चीजों को कहीं से भी अपने अंदर लेकर आ सकते तो मुझे बताए और कितनी इस तरह की रातें आए। खुदा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील कर, उन्हें जहां पे भी रखा होना तूने, हमें नहीं पता किधर। हम अपने बीमारों के लिए मैं युजीब का विर्द करते मेरे मौला, लेकिन सबसे ज्यादा मुस्तरिब इंसान इस जमीन पे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, हम कभी उनके लिए नहीं करते। खुदा उनके इस तरह आपको कम कर, हम उनके दिल को थोड़ी तसल्ली पहुंचे, कुछ सुकून पहुंचे, किसी हम में से किसी को देख के उनको सुकून पहुंचे, उनके असहाब उनसाब में शुमार कर माते
Ya Hussein, 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 Ya Hussein. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Ya Hussein, 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 Ya Hussein. आजा वे लाल असगर, आजा वे लाल असगर, आजा वे लाल असगर, आजा वे लाल असगर। लाल असगर आजा वे लाल असगर, 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 आजा वे लाल असगर। हो झोला तेरा झुलावा क्यों रुस गया है माँ तू, आजा मैं वारी जावा, आजा वे लाल असगर, 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 आजा वे लाल असगर। आजा वे लाल असगर, आजा वे लाल असगर, आजा वे लाल असगर, आजा वे लाल असगर। असगर तू नाज़नीने डाढे गरम ज़मीने, असगर तू नाज़नीने डाढे गरम ज़मीने, आजा मैं झोली पाके, आजा मैं झोली पाके वाला दिशा बनावा, आजा वे लाल असगर, आजा आजा वे लाल असगर, आजा वे लाल असगर। असगर आजा वे लाल असगर, आजा वे लाल असगर, आजा वे लाल असगर, आजा
असगर असगर आजा वेलाल असगर आजा वेलाल असगर असगर आजा वेलाल असगर आजा वेलाल असगर हो असगर मोहर्रम मोड़े संगत नमाज़ी तोड़े असगर मोहर्रम मोड़े संगत नमाज़ी तोड़े जोली चुलाल दे के जोली चुलाल दे के सुखी सौंदिया नहीं मावा आजा वेलाल असगर आजा वेलाल असगर झूला तेरा झूलावा क्यों रुस गया है माँ तू आजा मैं वारी जावा आजा वेलाल असगर आजा वेलाल असगर असगर आजा वेलाल असगर आजा वेलाल असगर असगर आजा वेलाल असगर आजा वेलाल असगर आजा वेलाल असगर आजा वेलाल असगर हो अमड़ी नारज के चाया भेणी नारज खिडाया अमड़ी नारज के चाया भेणी नारज खिडाया आजा मैं तैकू पढ़ के आजा मैं तैकू पढ़ के सुगरा दखत सुनावा आजा वेलाल आजा वेलाल असगर जोला तेरा झुलावा क्यों रुस गया है माँ तू आजा मैं वारी जावा आजा वेलाल असगर 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 असगर आजा वेलाल असगर आजा वेलाल असगर आजा वेलाल असगर आजा वेलाल असगर हो अमड़ी नारज के चाया भेणी नारज खिडाया अमड़ी नारज
रज के चाया बेणी न रज खिड़ाया आजा मैं तेकू पढ़ के आजा मैं तेकू पढ़ के सुगरा दखत सुनावा आजा वेलाल असगर राजा वेलाल असगर आजा वेलाल असगर राजा वेलाल असगर आजा वेलाल असगर आजा वेलाल असगर असगर आजा वेलाल असगर आजा वेलाल असगर आजा वेलाल असगर आजा वेलाल असगर हो असगर तू नाज़नीने डाडे गरम ज़मीने असगर तू नाज़नीने डाडे गरम ज़मीने आजा मैं जोली पाके आजा मैं जोली पाके वाला दिशा बनावा आजा वेलाल असगर आजा वेलाल असगर आजा वेलाल असगर आजा वेलाल असगर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मुतवज्जह إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمدًا رسول الله. اللهم أشهد أن عليًّا ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين وأولاده المعصومين عليًّا حجج الله حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم صل على محمد